Sir, if you're not able to hear me, please log off and log in. Is everybody able to hear me? Please give me a thumbs up, quick thumbs up. Sangeeta ma'am, Sri Lalita ma'am, Nitin sir, cameras on please. और क्विकली लिख डालिए किस एरिया से आपने ज्वाइन किया है, किस लोकेशन से, भारत से या आउट ऑफ इंडिया, wherever you have joined from, please. देहरादून, अहमदनगर, पुणे, गुजरात, कोई भी ऐसा जगह बाकी नहीं है जहां से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो सबको हो रही है वेट इश्यूज। अभी दिवाली गया, मिठाइयां खूब खाई, अब वेट बढ़ चुका है, राइट। अब कुछ करना पड़ेगा ताकि वेट को घटा ही रहे। तो कितने लोग जानने को उत्सुक हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें डाइट भी ना करना पड़े और हमारा वेट भी कम हो जाए। How many of us are willing to know what we can do to get rid of the extra weight or shed the extra weight without dieting? Because सबने कुछ ना कुछ डाइट तो किया है, वीगन डाइट, कीटो डाइट और न जाने कितने और फ्लारी नाम्स हैं इस डाइट के। बट एंड रिजल्ट इज दैट आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है और भले ही थोड़े दिन के लिए आप अपना वेट लॉस करते हो, बट आफ्टर यू स्टॉप डाइटिंग इट कम्स बैक टू स्क्वायर वन। सो वी डोंट वांट दैट। तो अब हमें क्या करना है ऐसा ताकि वी वर्क ऑन आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड गेट रिड ऑफ दैट वेट परमानेंटली। यस, परमानेंटली और नेचुरली आप वेट लॉस करें। So if I have your permission, can I share the screen to get you more deeper into Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa? Please write in the chat box if I have your permission. Thank you so much, Shrikant sir. Just give me 2 minutes and I will share screen. So Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa, the correct approach to weight management and related issues. Now let's move further. Namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than just weight management. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and how it can be corrected and balanced back to its natural state. Who is this webinar for? For people who are tired of temporary solutions and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands
and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. Weight management with Kumbha the right way, freedom from restrictive diet plans. What you will be learning in today's webinar: what is fat? Why the body creates fat? A new way to look at weight management. What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak? How Kumbhak works on the body. Let's hear from Swami Raj Vibhuji what he has to say about weight management. So everybody is ready to hear about weight and why the weight happens और किस तरह से आप अपने weight को कम कर सकते हैं without any restrictive diets. कितने लोग excited हैं ये जानने के लिए? Give me a quick thumbs up. Thank you so much. Waiting for your thumbs up before we start the recording. I will just give you a brief as to how we are going to proceed in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे recorded video of Swami Ji. Then we will be sharing the program details. After that, we will be having somebody live to share his or her journey of Ameda. Last but not the least, we will be having Swami Ji himself, who has designed the Ameda program, who will be joining us to answer your questions. तो देर ना करें, लिख डालें आपके problems, what you are having, and along with your name and number. Thank you so much. Namaste. Over to Anil Ji to share the video. Weight loss. पहली बात तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हाँ, वेट जो हम केवल कह देते हैं ना, केवल इसको बहुत वेट कह रहे हैं, नहीं नहीं, इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा जब हम बोलते हैं तो वेट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, केवल एक ही पार्ट है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए. मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा. उपमा बनाया होगा ना आपने? तो ऐसा कीजिए कि एक कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो. नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम. क्या मिस कर रहे हैं? अरे आग तो जलाया नहीं हमने. क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं. और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश. हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला. टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है. सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं. जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है. ये पार्ट ही मिस कर गए. और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके बहुत प्रेशर कम हो जहां पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं. बड़ा तब भी मुश्किल है, ये आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा. तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, 2 points that we are missing is pressure and temperature. और इसका ख्याल पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. वो मटेरियल तो के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, केमिकल के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी डाल दीजिए, जब तक बाकी दो फैक्टर जिसको आयुर्वेद में पित्त और वात कहते हैं, देखिए मटेरियल केवल जो होता है ना उसको श्लेष्म कहते हैं. आप मटेरियल डालते हैं, भोजन डालते हैं, दैट इज श्लेष्म. लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन हम हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मगर आज तक कोई ठीक हुआ? बताइए.
पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेट्स टेक 100 years ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया। अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है। एक इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। गिव मी वन एग्जांपल। व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया, जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया। हम तीन में बात करते हैं, है ना? तीन में बात करते हैं ना, वात पित्त कफ, हम तीन में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस तेजस वर्चस, हम तीन में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, तीन तरीके के पेन, हम तीन में बात करते हैं। जब तक आप तीन में बात नहीं करेंगे, आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको? तो अच्छा, प्रोटीन खाओ खूब, है ना? ये भी खा लो, वो भी, लाल भी खा लो, पीला भी खा लो, हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा, और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी। ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा। हेल्थ खराब हो गई, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले गांवों में बीमारी होती थी, सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है। जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पे। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना, ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे, एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80%, 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% of plants and animal species has gone extinct from the face of earth. एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? Why a life will get extinct? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना? Yes or no? If we increase the risk, then only a life will go off. तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, just for as an example I'm taking it, not an accurate picture, but अंदाजा लगाते हैं कि what kind of risk we would have increased in the last 100 years. We have increased the risk by a proportion, by an amount of 8,000%. 8,000% रिस्क हमने बढ़ा दिया। Tell me one thing more. Have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी?
क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क। एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम और व्याधि क्षमत्व। क्षमत्व कहां से आया? वेयर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी। व्याधि मीन्स डिविएशन। सो टू बेयर द डिविएशन, दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता। तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना। इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं। वी वर नेवर इंटेलिजेंट। सो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया, सिंपल तरीके से आई विल टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व। तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट। उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की। अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्मा टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स, सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुद्धि इज नॉट प्यूरिफिकेशन। तो तीन चीजें देखिए, तीन चीजें। अधि, अधि से शुरू। समाधि, you must have heard this word, samadhi. The second word is shuddhi, and the third word is vyadhi. ठीक है? सम अधि, शुभ अधि। शुभ अधि इज शुद्धि, और व्यधि अधि, व्यधि इज व्याधि। शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है। राइट? सो संस्कृत, व्हेन यू से संस्कृत वर्ड्स, प्लीज डोंट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि। उसको शुद्धि कहा जाता है। सो व्हेन यू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड द राइट काइंड ऑफ प्रेशर, वाटर एंड रवा बिकम्स उपमा, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, ज्ञान तो आप बहुत सारा यूट्यूब और गूगल में देख लेंगे, मगर सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना। इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना, तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का। अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का। राइट? सो व्हाट इज शुद्धि? शुद्धि, व्हेन यू यूज समथिंग फॉर इनहैंसिंग लाइफ, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं। नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की। इफ योर कैपेसिटी टू यूटिलाइज मटीरियल इज नॉट देयर, देन यू आर इन अ डिजीज। हाँ, सिंपल। आगे चलते हैं। देन हु शुड बी एबल टू यूटिलाइज थिंग्स प्रॉपरली इन द बॉडी? एवरीबॉडी ना। हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? सपोज यू हैव गॉट इनटू अ डिजीज एपिसोड, आपको बड़ा गहरा इंफेक्शन लगा और आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्म शुद्धि। राइट? सो यू हैव गॉन थ्रू एन ऑपरेशन, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ या इंजरी हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए।
व्याधि क्षमत्व चाहिए। रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए। रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चाहिए। और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि, उस समय भी आपको चाहिए। डिटॉक्स करना चाहते हैं अपने बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व। तो स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग, इट्स अ बिगर अम्ब्रेला, एंड वेट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वेट मैनेजमेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट। इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। If we are saying we have increased the risk of this human body or any kind of life, लाइफ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? What does it mean? Right? So naturally there is a balance of many things, with material, pressure, temperature, which creates life, है ना? वातावरण में भी टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे, ऐसा है ना? इफ वी डिविएट दिस बैलेंस, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, देन वी क्रिएट रिस्क। सो हैव वी पोल्यूटेड द एनवायरमेंट? क्या एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया हमने? सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क ऑन अस, अपने ऊपर रिस्क कर दिया, क्रिएट किया कि नहीं? सो वी चेंज द कॉम्पोजिशन, द रिसोर्सेस ऑफ दिस एनवायरमेंट। इसमें से पानी आप देखो आसपास में, जस्ट लुक अराउंड, how many places where you find ponds, rivers, lake, ताल, तालाब, सरोवर कहां गए हमारे? नहीं है। जमीन के नीचे पानी कहां है? फ्रॉम 50 फीट टू 5000 फीट डाउन, दूर चला गया पानी, है ना? जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास में वो नहीं है। हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको, कंडीशनड एनवायरमेंट में रहते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क बाय चेंजिंग द एनवायरमेंट और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरमेंट। एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया। द सेकेंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया। सो योर बॉडी इज डिजाइंड फॉर यूटिलाइजिंग नेचुरल फूड, भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है। ऑल द केमिकल कंपोजिशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, है ना, एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इजंट इट? भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप ये रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जांपल देंगे। है ना, विल यूज एडिपोस और फैट एज एन एग्जांपल। सो फैट also takes care of what you also call as cholesterol. कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं। डू यू नो कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। अच्छा, 90% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय योर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा। तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है।
और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल। और वो कहां से बनाएगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिसोल? इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। सो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे आप तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगा, यस और नो? योर बॉडी इज ए लिविंग एंटिटी। जब भी आप शरीर का रिस्क बनाएंगे तो वो रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाएगा। तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है। गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे। दैट इज क्रिमिनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you reduce the risk, the body will not make cholesterol, yes or no? But if you increase the risk and do not allow the body to increase cholesterol, you are doing a crime upon your body. आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो। नाउ गिविंग मोर एग्जाम्पल अराउंड इट, थोड़ा और एग्जाम्पल दूं कि हम कैसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को लेके। So how does your body mitigate infection? Infection को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? Many of you might have got into corona, yes or no? Or some kind of viral infection you must have got into, है ना? Viral infection तो हुआ होगा सबको। What is the first thing that happens in your body? What is the first thing that happens in your body? Fever, temperature rise, yes or no? Fever होता है ना? So किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है बॉडी का? व्हाट इज द वे ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी टू मिटिगेट इंफेक्शन? टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना। मगर आप नहीं बढ़ने देते ना। आप क्या करते हैं? यू टेक इन अ डोलो, क्रोसिन, पैरासिटामोल। आप बढ़ने नहीं देंगे। आप इसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, यू डोंट टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन। आप नहीं बढ़ने देते ना। दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे। कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे। So how will this body mitigate the risk? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा। इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू। वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि बे जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म। मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं। सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा। हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा, एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो। So when you do not allow this body to do something, the risk of this body increases. Yes or no? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। Then what will it do? It will go into a survival mode. ये सर्वाइवल मोड में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा। सो वो सर्वाइवल के लिए, व्हाट इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो देयर इज अ कोर, एक दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर। सर्वाइवल का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड। आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकलते हैं।
ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं। अब देखो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज। हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। तो देयर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है। ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है। यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है। तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का, तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में, ठीक है। अब ये एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है। जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स। ये दो तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है। जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है, आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना, दे आर उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं। और दूसरा स्टेरॉइड, जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉइड दिया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है। पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या बताया, जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है। यानी इन्फेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं, अब क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है। अब क्या बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी। और आप देख लीजिए, केवल टाइम की बात है, आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं। तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का, ये दोनों बढ़ा दिया। अब इसको काम नहीं करने दे रहे तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला, ठीक है। आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना। अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा ना। बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, कि वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो ताकि कभी काम करने दे तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। वही फैट है आपके शरीर को, वही फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी, इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट, लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, आप वो भी नहीं करने देंगे। यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी। और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोज, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है, ठीक है। अब उसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं। थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन और टू थिंग्स, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज। जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं।
और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। ज्वाइन हो रहे हैं। सो लेट्स गेट बैक टू हेलो। वेयर आई स्टार्टेड विथ। मैंने शुरुआत कहां से किया था? श्लेष्म शुद्धि। Appropriate use of whatever you put in your body and appropriate use of whatever is there in the body as a stock, as a reserve. हाँ, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं। Should I tell you one more thing? How do you mitigate the risk? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क? कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को? जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। टेल समबडी टू हिट यू हार्ड। किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आपको वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क। वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट? उससे बचने के लिए आप करते क्या? क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए? और टाइट करने के लिए आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ। एक और एग्जांपल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी। आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम। एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार नहीं। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन। इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगा है ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है। उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? सांस रोक लेते हैं। ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना? घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी, हाँ? एंजाइटी हैपेंस, डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है। बहुत खतरनाक न्यूज सुना आपने, कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है। आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है। इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ। हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो? अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होके, बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देयर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट? अब टाइट पकड़ लेते हैं ना। एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना? यू होल्ड योर सेल्फ टाइट। तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधि क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वन वे टू नो कि आपके शरीर में फैट यूज होगा कि नहीं होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. If there is excessive fat in your body or not, what will it, how will you check कि आपका वे अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है? आप अपनी पकड़ को देखें. इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अ लॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है. द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी is an indicator of your immunity, is an indicator of a larger scope. I am saying व्याधि क्षमत्व. ये अगर आप बढ़ाते हैं, if you increase व्याधि क्षमत्व, you will do श्लेष्म शुद्धि, you will increase immunity, you will increase the fundamental strength of your body, you will increase the organ function of your body and the organ strength of your body, you will increase the homeostasis of your body. अब एक नया वर्ड बोल दिया, homeostasis. Homeostasis, because of homeostasis there is everything in balance in your body. तीन चीजों को homeostasis चाहिए आपके बॉडी के अंदर, तीन चीजों का बैलेंस चाहिए. ठीक है? केमिकल होम्योस्टैसिस, ऑस्मोटिक होम्योस्टैसिस एंड थर्मो होम्योस्टैसिस. तीन चीज बताया. देखिए ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर. प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल. कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने. तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा. यही तीन चीजों का होम्योस्टैसिस बैलेंस लाएंगे, तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी. एंटी एजिंग भी होगी. नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन वे टू चेक. देयर आर अदर वेज टू चेक. आई हैव टोल्ड यू ओनली वन वे. पकड़ मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़. मेंटली किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है. समझिए, आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें. आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग. इफ देयर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता. तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा. अच्छा, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू सी, यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क. आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं. यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, यू विल सी, यू विल मिटिगेट रिस्क वेरी इजीली. एंड द फैट प्रोपोर्शन, आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा. अनदर एग्जांपल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं. इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एग्जांपल 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, देन व्हाट विल सी, इमीडिएटली व्हाट विल सी, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. आपको पसीना आ जाएगा विदाउट डूइंग एक्सरसाइज. सो एज आई सेड, थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर बॉडी का आपको बढ़ाना पड़ेगा टू यूटिलाइज फैट. यस और नो? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है. मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं, विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज. बाय जस्ट डूइंग कुंभक, यू इंक्रीज द थर्मो रेगुलेशन फैक्टर और थर्मो रेगुलेटिव इंडेक्स ऑफ योर बॉडी. शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है, आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा. एनीबडी हु डज कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टिल द व्याधि क्षमत्व हैज इंक्रीज कैन नॉट गेन वेट, कैन नेवर गेन वेट.
आई वॉज मोर देन 107 kgs, मैं 107 किलो से भी ज्यादा था। तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैनॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, इट विल गेट यूटिलाइज, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है। सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, you know, for transportation of fat or any material in the body, there is a certain osmotic pressure which is needed. आजकल उसको हम blood pressure बोलते हैं। There is nothing called as blood pressure. Blood pressure जैसी चीज कुछ भी नहीं होती, और किसी को भी मालूम नहीं है कि blood pressure होता क्या है, नहीं तो वो ठीक कर देते, पर हम लोग ठीक कर देते हैं blood pressure. How? By कुंभक। अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल। उल्टी किया होगा सबने, यू मस्ट हैव प्यूक्ड, उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा। उल्टी करने से पहले क्या होता? व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टेन प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए, एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ, सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए, एंड देन यू प्यूक आउट, फिर उल्टी होती है आपके। छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज? छींक मारा है? क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर? देखिए, ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है। लाइफ इज हैपनिंग हियर, यू मस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन ओनली यू विल गेट अ सोल्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना? थ्रो बाहर नहीं निकल रहा तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के? सबने किया होगा कि नहीं किया होगा? वो भी सांस रोक के करते हैं। दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग टू ट्रैवल इनसाइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रैवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आस्क अ पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए, और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड। अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना? हाँ या ना? और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस, और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन। ओजस वर्धन क्या करें? आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा, खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना? आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा। वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज। कोई और तरीका नहीं है। Now, because of that, you will see your immunity will increase. Because of that, your organ strength will increase. Because of that, you will be able to recover from disease very fast. Rehabilitation will happen. Anti-aging will happen. Fat तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब। So, श्लेष्म शुद्धि, how we are going about doing श्लेष्म शुद्धि? By using कुंभक to increase what is called as तेजस एंड वर्चस। दो फैक्टर बताए, श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर, वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर, एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार। सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया as one part of it. तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में। The first thing that will teach you is त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया।
The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhaka, which is directed towards every organ of your body. तो ये ओवरऑल हेल्थ प्रोग्राम है. So it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver के issues को खत्म करेगा, heart को strong करेगा. It will build up confidence, boost up confidence, and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body. आपके blood pressure को regulate करने के factor को बढ़ाएगा. It will enhance the किडनी की कैपेसिटी को वो इंक्रीज करेगा. तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है, श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रू आउट करने का भी डाइजेशन कैपेसिटी. इट विल इंक्रीज द हंगर इंडेक्स, द राइट हंगर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी. सही भूख, अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता, मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं. टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी. सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी. कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके. ठीक है ना? तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हठ कुंभक है. एंड द थर्ड थिंग इज it will also ensure that you become strong in your body. जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज. सो एंड देयर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रांग कर पाए, उसके लिए करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट. करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस. ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको. नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज. तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है. योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट. आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा. यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी काम ले सकते हो. जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ एग्रेसिव एक्टिविटी. आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से. एंड देयर इज अ मूवमेंट विद सर्टेन वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे. वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है. इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर. एंटी एजिंग भी होता है इससे. ठीक है, 3 चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक. ये तीनों चीजें, त्रिकाग्नि संस्कार, सर्वांग हठ कुंभक, करला कटाई, तीनों में ही कुंभक बेस है. कुंभक के बगैर हम नहीं कर रहे ये सब, क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता. बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है, नॉट विथ कुंभक. करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट विल यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना? तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है. विल टीच यू इन 40 days, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे. इफ यू डू प्रैक्टिस इट सो यू विल रीप बेनिफिट. लाइक वेट रिडक्शन तो होगा. इफ यू आर डूइंग कुंभक, लेट मी अगेन गारंटी दिस, इफ यू आर डूइंग कुंभक and your Vyadi Kshamatva has increased, which takes approximately 3 to 6 months from people to people. ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, then it will take 1 year to 3 year. बट सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने सिचुएशन, द स्टेट ऑफ योर बॉडी बिकम सच कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके. ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच यू कैन डू दिस? नो, यू कांट डू दिस थ्रू एनी अदर वे. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, बट फूड विल नॉट इंक्रीज योर व्याधि क्षमत्व. तो आपको क्या वो च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता. ऐसी चीजें नहीं होती.
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन व्याधि क्षमत्व बढ़ाएंगे तो एक हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है. So this is a missing part that we must focus upon, and this program is a complete rehabilitation, recovery, rejuvenation program, है ना. तो ये बड़ा स्कोप है इसका, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुवनेशन. किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, एनी काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, those kind of things, अगर ADHD इस तरह की चीजें भी हैं, so you'll see that the moment we increase the vyadhi kshamatva, the mental issues actually collapse down, वो चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं. So the core thing is vyadhi kshamatva बढ़ा के what we are doing श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं, and that is how we will achieve all those results that I have said. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमेदा, और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला, हमने कहा अमेदा, ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए. लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज अमेदा. किसके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है इस वक्त, तो है ना, सबके लिए जरूरी है. बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए. Take a decision. If you take a decision towards your life, you'll see you can go towards health and happiness. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. बाकी the team will take you forward. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I will be sharing the program details. So just give me 2 minutes. So Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa program details. It's a guided program conducted online on Zoom app by trained Kumbhak mentors. So program overview, 6 weeks की program है ये. 18 live classes, 3 classes every week, प्राण शक्ति diagnosis for root cause determination. जैसा कि आपने स्वामी जी के वीडियो में भी सुना, जब हमारे बॉडी में फैट होता है उसका कोई ना कोई रूट कॉज है, जो प्राण शक्ति डायग्नोसिस के द्वारा स्वामी जी उसको डिटरमिन करते हैं. उसके बाद वो कस्टमाइज कुंभक देते हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है. So one customization class after the classes of 18 classes are over. So batch 17 start date for Ameda Shleshma Shuddhi, 7 a.m. in the morning, 30th November 2023, Thursday. So what is going to be the class time and days? Time 7 a.m. First 2 classes will be on Thursday, 30th November and Saturday, 2nd December. Next week onwards, it's Monday, Wednesday and Friday. So what is the class experience going to be like? You are going to have live sessions where we expect you to have the videos on. Mentors watch participants. हमारे जो mentors हैं वो trained कुंभक mentors हैं जो आपको सिखाएंगे और वो आपको देखेंगे कि आप क्रिया ठीक से कर रहे हो या उसमें कहीं स्कोप है आपको इम्प्रूव करने का. Written instructions in English as well as Hindi. दोनों ही लैंग्वेज में आपको written instructions मिलेंगे. सेशन रिकॉर्डिंग्स, जो लाइव सेशन है उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा. What are the extras? Mental practices, unique diet perspective, simple detox, knowledge like no other.
So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. हम प्रोग्राम डिटेल शेयर करेंगे, उसके पहले हम बताना चाहते हैं ये प्रोग्राम किसके लिए नहीं है. It's not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. हम आपको instant results नहीं दे सकते हैं. You need patience and perseverance to practice it. क्योंकि ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जिससे आपको कल का कल रिजल्ट मिलेगा और शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेगा. This is not for those who are not ready to work on their body. कुछ लोग अपने शरीर के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं. They are okay with whatever it is. So this program is absolutely not for them. It's not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. आप करीबन 1 घंटा अगर खुद के शरीर के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते हैं फॉर वॉट एवर XYZ रीजन, तो ये प्रोग्राम आपको लाभदायक नहीं होगा. नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको पेशेंटली क्रिया करनी पड़ेगी. रिजल्ट आपको तभी आएगा. Not for those who are looking for a free treatment or just some tips. So special webinar pricing because you stayed till quite a long time. So we have a special webinar pricing. 9,500 is the actual AMEDA fee, but special pricing for the webinar is 5,500. So how do you pay? You can pay through debit or credit card, net banking, GPay, Paytm, PhonePe, UPI, cash deposit, bank transfer, international payments through PayPal as well. So ये सब कुछ हम लोग चैट में शेयर करेंगे, वेबिनार ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आप कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर मिल जाएगा. How to enroll? Pay the program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, submit your details to access course dashboard, join class WhatsApp group. What do you get? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. 3 classes per week, 60 to 70 minutes duration. Class recordings access for 6 months. आप जो भी सीखेंगे वो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल 6 महीने तक होगी. सेपरेट वीडियोस ऑफ ऑल द क्रियास, रिटन इंस्ट्रक्शंस, डेली सपोर्ट इन द क्लास ग्रुप, customization of kriyas as per the PSD, 30 days of extra support after the program is over. So how do we make sure that you understand everything? क्योंकि ये ऑनलाइन सेशंस है, तो ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आए. Doubts cleared in the live, main and practice class. So there are 8 levels of bulletproof support is the magic. Written instructions in English and Hindi. Class recordings for watching again. Small videos of all the kriyas. 6 days support inside the class WhatsApp group. Doubt clearing Zoom sessions, 11 a.m. to 1 p.m. and 9 p.m. to 10 p.m. Personal feedback support on the phone. 30 days of extra support after the course is over. So let's see who is there in our support team. Rachna Shimal Bothra, that's me, Program Director. Shalini Bhagwat, our class manager. Ranjana Swain, our mentor. Vibha Chorge, another mentor. Neha Upadhyay, enrollment in charge. Anil Chauhan, WhatsApp admin. Himanshu Reddy, the technical expert. Ganga, another mentor. क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें हमें जरूरत है इतने लोगों की ताकि हम स्मूथली प्रोग्राम रन कर सके और हमारे पार्टिसिपेंट्स हर चीज क्रिस्पी क्लियर उनको पहुंचाया जा सके और
smoothly with a good flow, we can reach across to all our participants और वो पूरी तरह से इसका लाभ उठा सके. Now I will be inviting somebody live who's been a part of Shleshma Shuddhi. Just give me a second, please. Okay. I would like to invite Mr. A. Aleem to please share his journey of Ameda. Yes, sir. I put you on spotlight. Namaste, sir. Aleem, sir. Thank you for taking time out for us and sharing with our participants your journey of Ameda. I am M.A. Ali. My age is 65 years. Initially, I joined this weight loss course in the month of July, end of July, for a period of 6 weeks, with the intention to reduce my weight. I am having a high BP problem. I am ankylosing spondylitis having for the last 35 years. So incidentally, my weight reduction is only 2 to 3 kgs, but I have a inch loss. My tummy has reduced. My waist size is 45. Now it is in this last 5 months. I am able. My waist size has come down to 42. And there is a inch loss, and there is a lot of stamina I am getting with this Kumbhak Kriya. Previously, I used to bend a lot towards forward because of my ankylosing spondylitis problem. Lot of my stamina has increased very much, and I am able to walk straight. Relatives and friends who see me, they will say some other new Aleem has born. So I am practicing it last 4 months continuously, minimum 5 days in a week. Even though this Kriya while learning takes 1 hour class, but once we practice and we'll do practicing, it will be completed within 15 minutes. And my blood pressure also with the same medication, with the medication I used to be, my systolic used to be around 160, 170. It is not coming down. But after the Kriya, I observed that my diastolic is same, but systolic has come between 130 to 140, continuing with the same medication. But systolic has come down. Second, I had a spinal fracture in 2017. I put on a lot of weight and my body used to be puffy. After this Kriya, it is getting stabilized, and I never slept for after 2017, my fracture on my stomach. Now with this Kriya, I am practicing sleeping on the stomach. So that much of flexibility has increased. Everybody knows what is ankylosing spondylitis. It is fuses our backbone and hip joints. So, but my flexibility is slowly increasing. I am happy. I will continue to do this practice because it is helping me. In inch loss, it helped me a lot and it increased my stamina. And I am feeling happy because it is recognized by my friends and relatives. Thank you very much for giving me this opportunity to share my feelings. Thank you so much, Aleem, sir, for sharing your views and journey of Amida. Now let me check if Swamiji has joined in to share. Yes, he's joined in. Namaste, Swamiji. Good evening. So we will be taking up the questions one by one. So the question is, Matsendra Anuradha Russell sir talks, I'm doing Garbhadan Kumbhak. Can I attend this?
Swamiji, you're not audible. Is it audible now? Yes. So with Garbhadhan, any other kumbhak can be done. Garbhadhan is basically directed towards consumption. Now, if the only question is, will you be able to find time? Right? So you can do the Garbhadhan in the morning and Ameda in the evening. If you want to join, but you'll have to do the complete process. Like Ameda has 3 steps. You can do all the 3 steps continuously or one after another, and then you have to do the full Garbhadhan process in the evening. Okay. The next question is Punguzali ma'am. Can you? Okay, she's written about translation. Okay, there are. Okay. Anybody from the participants who would like to ask their questions? Participants में से कोई भी अपना question पूछना चाहता है, please do so. You can raise your hands and we will take them up one by one. Anybody from the participants? Jayati Agarwal ma'am says, can we continue Kumbhak forever? Yes, it can be continued forever, because see, the moment you'll start, what will happen? Immediately there will be improvement in many factors. So when we say Shleshma Shuddhi Chikitsa, it can improve your metabolism. It can actually improve something called as insulin resistance. It can improve your pressure architecture, your blood pressure. It can improve the heart function, because the internal fat, we are working towards reducing or appropriating the internal fat, visceral fat. So there will be a lot of improvement. And then what will happen if you just settle down in the practice? You'll see it is not giving you the right kind of a kick, because once you start doing something very regularly, after a certain period of time, you have to intensify the practice. But once you intensify the practice, what will happen? Again, you'll see another kind of improvement in your body. The improvement doesn't stop. It goes in step by step manner. You can do it throughout your life. The improvement will not stay just on physical level. It will go on mental level. It will go on subtle level of your life. So you can do Kumbhak throughout your life. It is not compulsory. We say at least you must do it till you get the required result. So at least for 6 months. But I would say if you continue Kumbhak for 1 year, that will be best. If you want to do it, if you find improvement, you want to do it throughout your life. Nothing like this. There is nothing like Kumbhak actually, which can take you to areas of life which you can't even imagine. Anybody from the participants who would Bala sir talks about, I am just a sec. Okay, I'm Bala sir, 1 minute. Can we do it's been okay. Nivedita ma'am talks about Jay was help one of my friend ma'am actually. 1 minute. Can we continue? Okay, forum, sir, I think, would the program be in Hindi to understand and work? Yes, it will be in Hindi and English.
Okay. Nivedita ma'am talks about it's been 3 months since my C-section. So can I start now or I need to wait for Yes, 6 months? no, 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 no. You can start. If there is no scar, bleeding scar on your body, if there is no bleeding scar on your body, you can start. Jayati ma'am says, can it be done with Kriya Yoga too? Kriya Yoga has a different intention altogether. Kriya Yoga is designed towards yoga. Yoga means detaching yourself from life. Detaching from life is mukti, moksha, yoga, enlightenment, self-realization, nirvana, kaivalya. All these are synonymical words. These are synonyms. So Kriya Yoga is designed toward freeing yourself from the process of life. Right. So if you intend to do that, one thing is essential. If you establish yourself in life properly, then removing or detaching yourself from the life will not create a problem till you have a certain amount of karma left with you. Please listen to it again because it will be very difficult to grasp. Kriya Yoga basically depletes or erases your karma. You want to do that. Now, suddenly, because of Kriya Yoga or a certain experience, you get detached from the process of life. It will be very difficult to stay with your body till your prarabdha is shesha or prarabdha is left. So your body will suffer in various ways, in many ways. You can take example of Kriya Yogis. They detach themselves from life and their body suffered in a humongous way. So what is best is establish your body and do Kriya Yoga. So the right way is establish your body so that your body doesn't get into too much difficulty and you can practice your Kriya Yoga if you want to detach yourself from life. The best way is doing Kumbhak and Kriya together. Kumbhak and Kriya, if it is done together, the difficulties minimize actually. Because the detachment process is difficult actually. Right? You want to live basically. Your body wants to live and you don't want to live. This is the kind of a tussle that starts happening if you start real Kriya Yoga. If you start real Kriya Yoga, the tussle will be you don't want to live, but your body wants to live. So till your prarabdha, till your karma is left, your body should be healthy. Okay. Bala ma'am talks about I practice Kumbhak. No, I practice Sangeeta ji, Kumbhak and how? I do Anulom Vilom on regular basis. Any other way to improve? एक संगीता नायर जी का हाउ सून वी कैन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द बेनिफिट द मोमेंट यू स्टार्ट कुंभक दैट मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द बेनिफिट बट इट विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एज यू प्रैक्टिस द बेनिफिट विल स्टार्ट स्टेइंग फॉर लॉन्ग बट द मोमेंट यू स्टार्ट कुंभक बेनिफिट स्टार्ट फ्रॉम देयर देन एंड देयर Anulom Vilom, when you do Kumbhak. If you do Kumbhak through Anulom and Vilom, Anulom Vilom, I'll tell you what is the purpose of Anulom Vilom. The purpose of Anulom Vilom is balancing out something called as Apana and Udana. Balancing out Apana and Udana. It is still a yogic process. Right, balancing out Udana and Apana is a yogic process. Why you want to balance out Udana and Apana? Because you want the right stage or the right base to come out of life, to detach yourself from life. If you are doing Kumbhak in that, it is not directed towards any problem of your body. You may still get benefit because of balancing act, but your energy may take a turn which you may or may not like. So it is always advisable when you are doing Kumbhak to do it according to what you want in your life. The second thing is, if you want health, you should not be doing yoga. You should not be balancing Apana and
Udana. Technically, I am saying. So, can you continue your Anulom Vilom with Kumbhak? Yes, you can continue, but do some Kumbhak to establish your body. Once again. Bala ma'am talks about I practice Kumbhak when okay, this is answer. Usha Devi. I'm practicing Ashtanga Chikitsa. Both are different. Chikitsa, both are different. Do we get the same customization chart? Customization is given according to what results is you want, because you do Ashtanga Chikitsa for neuromusculoskeletal problem, and this is for utilization of visceral fat or Shleshma Shuddhi, rehabilitation. So customize is always given according to the result expected, result that you want. But yes, both can actually, after customization, if you have a problem, both can target the problem. In both the cases, in both the programs, certain problems are like common, which gets targeted on its own. You don't have to actually, that is why we say if you are practicing one Chikitsa, just like Ashtanga Chikitsa, you do it for at least 6 months after customization. And then only think about joining some other program. If you do it 6 months continuously, you'll see many of the problems that you want benefit in, they get addressed. Kumbhaka is related to breathing. No. Kumbhaka is related to breathing exercise. No, it is not breathing exercise. Even in yoga, the pranayama is not breathing exercise. Breathing exercise you do when you do exercise and breathing together. No. See, the thing is, don't call it breathing exercise. Don't call it breathing exercise. Why? Because you are holding your memory also. Are you doing some exercise to hold your memory? But you are doing Kumbhak. You are holding your life. We call it, you are holding your prana. Are you doing some exercise to hold your prana? But you are doing Kumbhak. So memory also happens with Kumbhak. Do you do exercise to enhance your memory, or can you enhance your memory with exercise? Not possible. Can you get any kind of, can you change your mindset through any kind of exercise? Breathing exercise, when you say, it is almost like saying pranayama, because yoga is marketed well throughout the world, and the word breathing exercise has come from pranayama. They are saying pranayama, they don't want to call it pranayama, because in Western cultures there are certain groups which don't want to accept yoga terminology, so they are naming it differently. Like, for example, one doesn't want to call a practice as vipassana. So what they call it as mindfulness. Mindfulness actually is vipassana, but vipassana is practical, mindfulness is impractical. No mindfulness has happened by saying mindfulness. So changing terminology doesn't help. In India, nobody wants to establish some terminology. So everybody accepts even the changed terminology. It is not okay, because the practice that we are doing is not breathing exercise. When you lift a weight, are you doing some kind of a breathing exercise? No, when you walk, jog, do yoga, even yoga, do Zumba, aerobics, you climb staircases. Are you doing some kind of a breathing exercise? No, you are not doing, but you are doing Kumbhak. When you are thinking, are you doing some kind of a breathing exercise? No, you are not doing, but you are doing Kumbhak. So Kumbhak is effort making ability of any kind of life. Any life, even nature makes effort through Kumbhak. You know how rain happens somewhere? Low pressure, high pressure. Right? So Kumbhak happens in pressure gradient. The pressure architecture of universe is Kumbhak. In a very gross form. There are subtle aspects of Kumbhak which will need a different kind of a mind to understand.
But yes, even if you are saying what is Kumbhak, don't say it breathing exercise. Kumbhak, you can call it Ayurveda. It is better to call Kumbhak as a part of Ayurveda rather than some kind of a breathing exercise or yoga. Don't call what we are teaching, at least the Kumbhak that we are teaching is not part of yoga. It is a part of Ayurveda, the science of correcting, controlling Vata, Pitta and Kapha. Vata is the pressure architecture of your body. Pitta is thermal architecture of your body. And Kapha is material. So with pressure and temperature, the material, the Shleshma gets utilized. This is called as metabolism. Utilization of Shleshma is called as metabolism. It happens with Vata and Pitta. So controlling Vata, Pitta, Kapha is Kumbhak. Your body controls Vata, Pitta, Kapha through Kumbhak. In fact, your body does anything through Kumbhak. Hypothyroidism, we have a different program. If you are multiple problems, you can drop your number in the chat box. We'll get in touch with you. We'll ask all the problems in details, and then we'll guide you towards the most appropriate kind of a program for you. Vinayak sir, you want to ask some question, please do so. I have unmuted you. Yes, madam. I am also doing Ashtanga since last 6 months to 7 months, I think. And I'm trying to reduce my weight, but the weight loss is not getting down. So What weight is the loss, reason? yes, weight loss. Don't try to reduce weight. Your body will reduce weight automatically after when it gets the right situation within itself. So forcefully reducing weight is not good. Your organs will get damaged. So I can give you example of many people who wanted to reduce weight, got a lot of benefit in other things, but they didn't get benefited in weight. So I said just keep practicing it for a little more time. And there are people who after practicing 1 year suddenly started reducing weight. So that threshold time will come. But before that, your body will improve and keep on improving to the right base. When the improvement happens in the right and your body gets the right kind of a base, then it will start immediately reducing weight. My weight was 106 kg. Right? It never now, my weight doesn't increase at all. Whatever, I drink sometimes 200 ml of ghee. I drink that amount of ghee, but my weight never goes up because of the Kumbhak itself. But your body will get to the right state of health, only then it will reduce weight. Weight actually protects you. Please understand, weight protects organ damage. Any kind of visceral fat. The body increases visceral fat because it is feeling risk. It is into some kind of a risk. Till risk is reduced, do not reduce weight, otherwise organ damage will happen. So people are trying to reduce weight and they are getting into heart attacks also. Right? So just keep doing Kumbhak. It is guaranteed your weight will reduce. But yes, in this program, what we are also doing, we are doing certain practices for body shaping. There are practices for body shaping. But you do Kumbhak for some more time. If you feel that you are healthy enough to do body shaping because there are certain practices which will take a little load, which happens with weight. Karlakatai. In Ameda, we give Karlakatai practices, which takes a little strain. And if you have that kind of a strength, then you can actually learn those practices of Ameda. But at this point of time, just do it for a little more time. 3 months more and then see. Okay. Thank you. Any other participant who would like to ask their question? Can please do so. We finish the chat questions. So we'll close this, or somebody wants to ask. और कोई वंदना भी जी, participant वंदना जी पूछ लीजिए.
हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मुझे एग्जैक्टली मैं कभी ब्रीदिंग या ऐसे कुछ किया नहीं है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज कुंभक और कैसे आपकी सांस चढ़ती है ना कोई हैवी वर्क करने पे? हाँ चढ़ती है ना? तो आप कोई हाँ भी काम आप कोई भी काम कैसे करते हैं? देखिए, ये आपके आवाज़ से पता लग जाता है कि आप में प्रॉब्लम क्या है। तो आपको राइट तो कुंभक कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी जोर लगाते हैं ना तो आपकी सांस फूलती है। यस जोर लगाने के लिए क्या करते हैं? आपको सांस रोकना पड़ता है ना। रोकना पड़ता। तो रोकने की कैपेसिटी कम है आपके शरीर की, तो रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ना। तो कुंभक का एक राइट आयाम सांस को रोकने का कैपेसिटी बढ़ाना है। ओके तो ये तो आपको करना है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ये ओके करेंगे, उसके बाद आपका सांस फूलना वूलना सब बंद हो जाएगा, और आगे जो रिस्क आ रहा है ऑर्गन पे वो सब कम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। सो विल क्लोज दिस वेबिनार। Anything आपका else? Okay, ठीक है। तो आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका जीवन हेल्दी हो, हैप्पी हो, ऐसी हमारी शुभकामना। Thank you so much to all the participants. Stay well, stay happy. Signing off, Rachna. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया, you can always ask in the webinar group, and our admins is going to answer it fully. Thank you so much. एक्सक्यूज मी, Yes. ये ग्रुप कहाँ है? मुझे नहीं है ये उसमें पता। एक्चुअली व्हाट्सएप पे आपने ना जब रजिस्टर किया था तब ज्वाइन किया है, तो वो ग्रुप आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। एक्चुअली हमें मेरे बस स्पेशली हस्बैंड ने ये किया था इसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किया था, तो उन्होंने किया है कि नहीं नहीं पता है मुझे। तो एक काम करिए ना, आपका नंबर लिख डालिए, हम आपको नहीं है तो हम ऐड कर देंगे। यस यस ओके तो आप चैट में लिख दीजिए। यस यस थैंक यू। Yes. So, Neha, can you please make a note, and if ma'am is not added, please add her. Good evening. I'm Bala here. Yes. Acha, actually this session other activities very important. So can I join in the next session? And Surely you can, but we have limited seats. So what we tell the participants that if you're sure about joining, you can always enroll now and join later. And do that. I'll do that Otherwise, in if you the want to join later, that is also okay. But since our seats are limited, so that's why it's like. I'll get back to you on that. And when shall I pay? I want to know this thing. When will be the next session like? Wait. Now this is 18 classes, isn't it? I'm busy till end of Jan. So is it End possible? of Jan. So, ma'am, I think then you can connect with us in Jan. First That would be better. Okay, Yeah. okay. Thank you. Thank you. Namaskar. What if I miss the first class, ma'am? I'm Margaret, wife of Manohar Thomas. I'm Wife of? Margaret. Manohar Thomas. I'm using his iPad. I'm Okay, Margaret. okay, no worries. No worries. So if you miss a particular class, see, that is very much possible, and 90% of the times people do miss classes because it's like a long tenure. So when you miss classes, you are anyway getting recordings. Can we have some silence, please? I'm trying to answer somebody's question. Hello. Yeah, Hello. I'll just mute all. Okay. So, whenever you miss a class, then that is very much possible because of the tenure of the online therapy class. You get the recordings and you get the PDF also. So what you can do is, you can take any problems that you face, you can always discuss with the mentor in the next class. I hope I've been able to answer your question, ma'am. Okay, please unmute yourself. Oh, yes, ma'am. You have. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Yes, Chandrika ma'am, you want to ask something? मैडम मैं जर्नी में हूँ अभी, तो पूरा सुनने में बहुत तकलीफ हुई। नहीं ट्रेन में चालू ट्रेन मैंने शुरू किया, 3 बार शुरू किया, 3 बार गया, तो अब मुझे ये रिकॉर्डिंग मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा है।
इसका 100% आपका जो वेबिनार ग्रुप है ना, उसमें हम लोग को थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तो समझ लीजिए 9 साढ़े 9 तक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पूरा 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 रिकॉर्डिंग मिल रिकॉर्ड। जाएगा ना मैडम? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। ओके ओके।